will learn lesson 3 of standard 10, two stories about flying. Here first story is First Flight by Liam O'Flaherty. In this story, what we learn that is given here, first of all, look at here. Since the earliest times, humans have dreams of conquering the skies. Here are two stories about flying. So first I have given heading that his first flight, and another story we will learn ahead. And in this first flight, the story is about a young seagull. How his parents learn him his first flight. उसे फर्स्ट फ्लाइट उसके पेरेंट्स कैसे सिखाते हैं वो हमें देखना है ये स्टोरी में. फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, पार्ट 1. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. So यहाँ पे कौन है? सीगल है ओनली, जो अकेला रह गया है उनके एरिया में. Their brother and sister already flown away. He had been afraid to fly with them. He is remained there because he afraid to fly. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. What happened with him? He had taken run forward. आगे बढ़ गया, थोड़ा दौड़ने लगा, but brink of the ledge, वहां पे then he flapped his wings, but he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath. वहां पे sea है उसके सामने, that is a great expanse, बहुत ही फैला हुआ है और उसके बीच में उसको डर लग रहा है. It was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. उसे अपनी wings पे ट्रस्ट नहीं है. What he felt that his wings would never support him. उसे सपोर्ट नहीं करेंगी और वो गिर जाएगा बीच में लाइक. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. वहां पे वो छुप जाता है रॉक है वहां पे बहुत सारे, उसके बीच में हॉल है, वहां पे वो छुप जाता है. वो he bent his head and that hide there under some hole, and little hall है वहां पे, where he slept at night. वहां पे वो सो भी जाता है. Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर थे उसके विंग्स तो उससे भी बहुत छोटी है, फिर भी वो वहां पे पहुंच गए. They flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appears to him so desperate. वो बहुत ही डरा हुआ है. He could not get any courage to plunge which appeared to him. बहुत सारी जो वहां पे जो पॉसिबिलिटी है वो वहां पे देख नहीं रहा है, एंड वो डेस्परेटली वो वहां पे फ्लैप भी नहीं करा है उसकी विंग्स. He not even tried because he thought that his wings would never support him. That's why he hadn't trust on his own wing. His father and his mother had come around calling to him shrilly. उसको भी बहुत ही वो पेरेंट्स एंड मदर उनको बुला रहे हैं वहां पे, upbraiding him. उसको थोड़ा क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा हेल्प कर रहे हैं आगे जाने के लिए. Threatening to let him star on his ledge unless he flew away. वो वहां पे ट्राई नहीं करेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा. तो वो क्या कर रहे हैं, लेट हिम स्टार, अपने आप ही तुम ट्राई करो, अपने आप तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम उड़ना नहीं सीखोगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए वहां से मूव भी नहीं हो पा रहा है. उनकी मदर ने उसको थ्रेटन भी किया लेकिन फिर भी वो वहां से मूव नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे क्या होता है, बिगिनिंग में ही he tried to fly, बट हमें देखना है कि वो सीख पाता है या नहीं, वो अपने आप में ऐसा इतना प्रयत्न करता है कि नहीं, वो सिर्फ हमें यहाँ पे अभी देखना है. In next paragraph, that was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. कितना टाइम हो गया, 24 hours ago, उसके पास कोई नहीं आया है. The day before all day long
He had watched his parents flying about with his brothers and sisters. वो सिर्फ देख रहा है उन लोगों को, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। वो ये देख रहा है कि वो कितने परफेक्ट है उनकी फ्लाइट में, या जो आर्ट है फ्लाइट करने की उसमें। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको पता है कि कैसे वेव्स के सामने जाना है। हाउ टू डाइव फॉर फिश। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock. उसने उसके जो older brother है उसने भी सिखाया catch his first herring and devour it. So here his brother catch his first herring, that is a eatable kind of fish, and devour like greedily he ate it. At it, standing on a rock, वहां पे खड़े हुए वो कैसे खा रहा है जैसे greedily, while his parents circle around raising a proud cackle. उनके जो पेरेंट्स है वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं लाफ करते हुए। कैकल मीन्स या गुफो भी कह सकते हैं, लाइक वी कैन से काइंड ऑफ लाफ। ये लाफ का एक प्रकार ही है, वो बहुत ही लाफ कर रहे हैं प्राउड के साथ। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। दिस इज अ काइंड ऑफ द सरफेस। वो वहां पे जाने वाले हैं मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डनेस। वहां पे वो उनको थोड़ा क्या कर रहे हैं, टॉन्टिंग भी कर रहे हैं कि वो उनके कावर्डनेस, यानी कि वो बहुत ही डरपोक है, वो बहुत डरपोक है, इसीलिए वो उनको टॉन्टिंग भी कर रहे हैं कि वो उससे बाहर आ जाए या कुछ ट्राई करे। सब लोग जा रहे हैं होल फैमिली, लेकिन वो वहां से नहीं जा रहा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, वो डिफरेंट साइड में भी आ गया, डिफरेंट डायरेक्शन में भी। blazing on his ledge that faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. ना प्रीवियस नाइट से उसने कुछ खाया नहीं है। स्काई में जो सन है जो उसके सामने आ गया है, तो उसकी हीट की वजह से उसको भूख भी लग रही है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसको जानबूझ के कुछ खाना भी वहां पे नहीं दिया है और कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने आप ट्राई करेगा तभी उसको मिलेगा वो सब। तो वहां पे वो बैठा रहा है प्रीवियस नाइट से, पूरी नाइट तक वहां पे है, अगली नाइट तक, फिर भी उसको कुछ खाने को नहीं मिला है, या फिर वो कुछ ट्राई भी नहीं कर रहा है। उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, और वहां पे ज्यादा भूख इसीलिए लगती है कि सन है जो उसके सामने उसके फेस टू फेस आ गया है। दैट्स व्हाई। In next paragraph, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. एक लेग के साथ खड़ा हो गया वहां से, वो वहां पे सरफेस के आगे आ जाता है, अभी शोर के पास अपना एक लेग है जो हिडन रखा हुआ है उसकी विंग के अंडर में। He closed one eye and then the other and pretend to be falling asleep. क्या कर रहा है? प्रिटेंड, जैसे कि नाटक कर रहा है कि सो जाने का। Still they took no notice of him. कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. वहां पे वो क्या कर रहे हैं? जंप जैसे कर रहे हैं कि अपना हेड इनसाइड डाल के खड़े होना, लाइक अ फिश संक कर रहे हैं, फिर वो हेड अप कर रहे हैं, जैसे कि ट्राइंग टू फ्लाई अंडर दैट एरिया, अंडर दैट सी। वहां पे जैसे छलांग लगाना, फिर इनसाइड जाना, वो सब। His father was preening the feathers, वो feathers फैला रहे, फफड़ा रहे जैसे, on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. वहां पे रॉक है बड़ा सा, उसकी मदर है वो वहां पे खड़ी है और सिर्फ उसको देख रही है। और व्हाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उनका जो व्हाइट ब्रिस्ट है वो आगे जा रहा है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. वो उसने क्या किया है? एक फिश लिया है, एक फिश का पीस लिया है और वो उसको थ्रो करे, जैसे कि उसके फीट के आगे रखा है उसने। Then scrap each side of her beak on the rock. वो अपनी बिक से एक स्क्रैप कर रही है, उसकी साइड बदल रही है, जैसे कि इस साइड से उस साइड रॉक पे। The sight of the food maddened him. वो ऐसा क्यों कर रही है? जैसे कि जो फूड है वहां पे रखा है उसको देख के उसमें हिम्मत आ जाए, या वो खाने का प्रयत्न करे, या वहां पे आने का प्रयत्न करे। दैट्स व्हाई उसकी मदर है, सो ये सब क्रिएट कर रही है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। ऐसा क्यों करे? उसको पता है कि जैसे पीसेस करना फूड का, ऐसे टीयर करना,
पीसेस करते हुए कैसे खाना वो उसको अच्छा लग रहा है. दैट्स व्हाई शी इज डूइंग द सेम थिंग. स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वो अगेन एंड अगेन क्या कर रही है? स्क्रैप कर. शी अगेन एंड अगेन स्क्रैपिंग हिज बिग एंड वो क्या करे? उसको शार्पन करे, जैसे कि वेट इट लाइक अ शार्पन इट अगेन एंड अगेन. तो उसको देख के वो वहां पे आ जाए खाने के लिए. Now in next paragraph, what the sound he do that ga 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 ga. He cried begging her to bring him some food. वो beg कर रहा है कि उसे कुछ food दे. Cried कर रहा है that give some food to me. Gaw gaw. She screamed back derisively. Derisively यानी कि reverse में वो उसको scream कर रहे. That is they are doing in their own sounds. But he kept calling plaintively. बहुत बार उसको बुलाया. After a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसने भी वहां पे एक पीस लिया फिश का, उसके सामने थ्रो किया. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. वो वहां आगे आया उसको लेने के लिए and then tapping the rock with his feet. रॉक को ऐसे थपथपाते हुए. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. क्या कर रहा है वो? खाना लेने के लिए वो थोड़ा आगे जा रहा है. बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी फेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. जब वो उसके पास आ गया, शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, उसके सामने आ गए, तो क्या होता है? शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. जब वो उसके नियरर आता है तो वो शी स्टॉप देयर एंड विदाउट एनी मोशन, विदाउट एनी movement of her wings, she stopped there. The pieces of fish in her beak almost within reach of his beak. उसके बीक में जो पीस है उसका फिश का, वो थोड़ा पास में ही है. That is the within reach of his beak. उसको लेने के लिए वहां आना पड़ेगा, उसके अपनी बीक में लेने के लिए उसको वहां पे आना पड़ेगा. He waited a moment in surprise. वो वहां पे खड़ा रह गया कि जैसे वो मुझे दे दे. Wondering why she did not come nearer. And then maddened by hunger. वो भूख से मारा जा रहा था, उसको बहुत ही भूख लगी थी. Like become crazy by hunger. Then he thought with wonder that why she did not come near. He dove at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. उसने एक डाइव लगाया, छलांग लगाया फिश के सामने. Like with a loud voice, एक बहुत ही बड़ा आवाज निकाला. जैसे ही fell outward, आगे गया, पीछे गया स्पेस में. Then a monstrous terror seized him. बहुत ही बड़ा आवाज, बहुत ही monstrous voice उसने निकाला. Then his heart stood still. वो जैसे कि उसका हार्ट है स्टॉप हो गया वहां पे. He could hear nothing, but it only lasted a minute. That thing happened only for a minute, that he could hear nothing. The next moment he felt his wings spread outward. Then next moment में वो learn कर गया that he felt his wings. उसे पता चल गया कैसे outward spread करना है. The wing rushed against his breast feather. उसके जो आगे के feathers है वो अपने आप उसके जो wing की वजह से आगे चल यानी कि आगे जाने लगे. Then under his stomach and against his wings. Then while doing this, he learned that flying, he could feel the tips of his wings cutting through the air. वो फील करने लगा अपनी जो विंग्स है वो हवा में जा रही है, आ रही है. He was not falling headlong now. वो अभी गिर नहीं रहा है. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. वो बहुत ही खुश हो गया. Then he flapped his wings once and he soared. फिर से वो आवाज करने लगा upward, downward, upward, ga 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 ga, go ah. His mother swooped past him. वो भी उसके सामने पास, like near, उसके पास में थी. Her wings making a loud noise. उसकी wings से वो आवाज कर रही थी. He answered her with another scream. Yeah, again and again with scream, loud voice. Then his father flew over his screaming. He also
फ्लू ओवर, पास में आने लगे वो सुन के उसकी आवाज। He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने क्या देखा कि उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर है वो उसके पास में ही है, वहां पे जो उनके ब्रदर्स है सिस्टर्स है वो भी वहां पे जंपिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, लावर्स कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, वो सब वहां पे ऐसा कर रहे हैं और वो भी उसके साथ में करने लगा है, यानी कि वो बहुत ही खुश हो गया है कि उसने ये सब कुछ सीख लिया है। Move forward. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. He forgot that he cannot fly now and commanded himself to dive, soar, curve, shrinking shrilly. अपने आप को वो डाइव करने लगा, शोर करने लगा, देन लाउड वॉइस में वो क्या कर रहा था, श्रिंकिंग, यानी कि बहुत ही ज्यादा आवाज करना, बहुत ही खुश होके। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. वहां पे खड़ा था, ओशन को देख रहा था। He saw a vast green sea beneath him. बहुत ही वास्ट क्या कर रहा है, वास्ट ग्रीन सी उसको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वो बहुत ही वास्ट यानी कि वाइड सी है वहां पे, with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. आवाज कर रहा है डिफरेंटली, साइडवेज से लेके आगे जाना। His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. उसके सामने वो आ गए, then they landed on that green flooring. They were beckoning to him. वो उसको बुलाने लगे, calling shrilly, loud voice करके। They were beckoning to him और calling shrilly, यानी कि loudly उसको बुलाने लगे, with loud voice, cry करते हुए, like scream that cried, loud voice, that all the same here, that is the another word shrill. And then beckoning यानी कि उसको आवाज नहीं करना है, जैसे कि हम साइन दे के बुलाते हैं किसी को, like he dropped his legs to stand on the green sea. तो उसको लैंड करना भी उन्होंने सिखा दिया। His legs sank into it. He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings. Then he tried again, flapping his wings. कैसे लैंड करना है, स्टैंड करना है, that all the things. But he was tired and weak with hunger. He could not rise because he was tired. बहुत ही वीक था, खाना नहीं खाया था, that's why he could not rise again. Exhausted by the strange exercise. थक गया था वो, उसके लिए तो वो strange exercise ही थी कि वो everyday तो नहीं कर रहा था। His feet sank into the green sea. Then his belly touched it and he sank no further. आगे वो अभी नहीं जा रहा था, उसकी belly जो वो टच कर रही थी वहां पे ग्रीन सी में, उसके जो फीट है वो डूब रहे थे वहां पे थोड़े थोड़े। He was floating, तर रहा था on it. And around him his family was screaming. वो बहुत ही आवाज कर रही थी खुशी से, praising him, उसको appreciate कर रही थी। That's why he can do good. Their beaks were offering him scrap of dog fish. उसकी जो beak है उसको वो ऑफर कर रहे थे, यानी कि वहां पे dog fish को वो कैसे क्रैश करना है, लेना है। He had made his first flight. Then ये सब करते हुए वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो सीख गया, यानी कि while doing this all the things in different way, उसकी जो फ्लाइंग की पैटर्न्स होती है, वो लोग जैसे फ्लाइंग करते हैं, वो सब करते हुए वो अपनी पहली फ्लाइट है वो सीख गया। पहले तो हमने देखा कि वो डर रहा था, अभी लास्ट में उसने लर्न कर लिया। ओके, सो हियर फर्स्ट पार्ट इज ओवर।